Hello students, I am teaching you Python. This is chapter number 9, class 11th. So let's continue chapter 9. This is second part of the video. So chapter 9, let's continue with the repetition of task. That is a necessity of the Python. So we mentioned earlier that there are many statements who need to execute itself again and again. So if you want to do something again and again, then loops are required. Loops are called repetitive statements. So sometimes we need to repeat some steps again and again. For example, if you want to make dosas for 20 people, what will you do? You will first heat up the pan, then you will spread the material of dosa on that pan, then you will flip that 2 times or 3 times depending upon the requirement. Then what will you do? Then you take off the pan. So one dosa is ready. After that you will again do the same process for second dosa. In this way, if you want to make 20 dosas, then you need to repeat the same number of steps again and again. This type of statements in Python or in any programming language is called repetitive statement, जिसको हम loops के through करेंगे. So in Python, there are 2 loops. One loop is for loop, second is while. So in this video, we will do these 2 loops, for loop and while loop, with example. So this is a natural process. This is day-to-day process. हम इसको Python language के through करेंगे. How Python syntax is required to do all these things. So let's do this. This is all day-to-day examples. Let's see. To carry out repetitive task, Python does not have any go-to statement. Go-to statement is not there in Python. In Python, what we have loop, that is while loop, and that is for loop. So while loop is sometimes called conditional loop. Means हम एक कंडीशन देंगे, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप चलता रहेगा. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो while लूप रुक जाएगा. एंड सेकेंड इज फॉर लूप. फॉर लूप इज कॉल्ड काउंटिंग लूप. तो इसमें पहले से ही हम एक लिस्ट दे देंगे. दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स इज हैविंग ए नंबर ऑफ numbers. So all those numbers will be executed one by one. Suppose there are 10 numbers in a list, then this loop will work 10 times. तो इसको हम counting loop कहते हैं. So conditional loop and counting loop, 2 तरह के loop है Python में. तो हम with examples करेंगे इसको. Before we start loop, let's see the range function. Range function is a function which is used to create a list. तो ये क्या करेगी? आपको स्टार्टिंग और एंड के 2 नंबर लेके ऑटोमेटिकली एक लिस्ट क्रिएट कर देगी. एंड दैट लिस्ट कैन बी यूज्ड इन फॉर लूप फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स. तो बिफोर वी स्टार्ट विद लूप, स्पेशली फॉर लूप, लेट अस डिस्कस द रेंज फंक्शन. ठीक है ना. पाइथन विच इज यूज टू, अब पाइथन क्या करती है, फॉर लूप में कुछ लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. तो रेंज फंक्शन इज यूज टू क्रिएट दैट लिस्ट. तो यहाँ पर एक सिंटेक्स दिया हुआ है, देखो. इफ यू वांट टू क्रिएट ए लिस्ट 5, 7, 9, 11, तो व्हाट इज दैट लिस्ट? स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है हमारी 5 से. एंड कहाँ हो रहा है? एंड हो रहा है हमारा 11 पर. और इंक्रीमेंट कितने का लग रहा है? इंक्रीमेंट हर बार +2 का हो रहा है. तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11. So this type of range function need 3 things. Number 1 start, number 2 end, and number 3 the increment or decrement that you want. Okay, so here a number of examples are given. Here is the syntax given for range. Lower limit, upper limit means it is starting, it is ending, and third thing is optional. If you are not giving increment or decrement, by default increment is 1. तो हम देना चाहें तो दे भी सकते हैं. If you don't want to give 1, then you can change it also. जैसे रेंज किया हमने range 5, 0, it will give an error or it will give an infinite loop.
क्योंकि इंक्रीमेंट तो इन 5 के बाद 6 7 8 9 0 तो कभी आएगा नहीं, तो इट विल बिकम अ इनफाइनाइट लूप। ओके, तो ये लूप ठीक, दिस रेंज फंक्शन इज नॉट करेक्ट। रेंज 12 to 18 means 12 plus 1 automatically starting is 12 and end is 18 and increment is 1 by default, so 12 13 14 15 16 and 17। अब नोटिस करो कि यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट। First value is included, second value is not included, that is excluded in the list। तो ये देखो, ये लिस्ट बना के भी दिखा रखी है, ठीक है। अब हम ये देखो, ये स्टेप मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल ये टॉपिक है। दिस इज इन स्टार्टिंग, दिस इज एंड, और ये ऑप्शनल जो आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट में कहूँगा स्टेप। अब ये स्टेप क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अगर नहीं दोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन आप दोगे तो वही होगा जो आप दोगे। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड स्टेप। यहाँ दिया हुआ है कुछ वैल्यू 0 10 एंड 2। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 0 से। 2 का इंक्रीमेंट है तो 2, 0 + 2 2 4 6 8। अब लास्ट वैल्यू ध्यान से देखो, मैंने कहा कि लास्ट वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, तो 10 तो इंक्लूडेड है ही नहीं इसमें, सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस लूप। नेक्स्ट देखो, ये रेंज फंक्शन क्या दे रखा है, बिगिनिंग इज 5 एंड इज 0 एंड डिक्रीमेंट -1 इज द इंक्रीमेंट, मीन्स डिक्रीमेंट। सो 5 then 4 then 3 then 2 then 1, but 0 will not come क्योंकि मैंने आपको कहा this is excluded, तो this will be the result of this range। अब ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ एक ही वैल्यू दे दे रेंज फंक्शन में, तो it is very important to understand that in range there can be 3 values, or in range there can be 2 values, and in range there can be 1 value also। अगर 1 वैल्यू हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग होगा वो 0 हो जाएगा, और जो थर्ड वैल्यू होगी इंक्रीमेंट वो 1 हो जाएगा। बट दिस मिडल वैल्यू इज कंपल्सरी, मीन्स एंड इज कंपल्सरी। स्टार्टिंग विल बी 0 ऑटोमेटिकली, इंक्रीमेंट विल बी +1 ऑटोमेटिकली, बट दिस एंड यू हैव टू गिव। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई रेंज की वैल्यू दूं ही ना। तो these 3 formats are available in Python। तो range 10 means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मीन्स 10 जो होगी वो एंड वैल्यू हो गई। स्टार्टिंग वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट 0, इंक्रीमेंट इज बाय डिफॉल्ट 1। तो यहाँ देखो रेंज 5 10 मीन्स 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9। Here 3 to 7 3 4 5 6। Here 5 to 15, but increment as 3, तो 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14, but next value is not included in that। 9 to 3 decrement -1 is the decrement, so 9 8 7 6 5 4, last value is not included। In this way we can understand the range function। Operator in, now like range function, in is also an operator। तो अगर मैं कहता हूं 3 in this, it will give me true statement। If I say 5 in this, देखो 5 तो है ही नहीं इस लिस्ट में, तो it will give me false statement। तो in clause is very important। In clause is giving the result in true and false। If the value, say 5 in the list is say 1 2 7 8, तो क्या 5 इस लिस्ट में है? 5 इस लिस्ट में नहीं है, it means its result is false। So in clause will check the value in the left hand side in the list in the right hand side। If it is available, it will give you true value, otherwise it will give you false value। तो हम यहां पर क्या रहे, 5 not in this। अब ध्यान से देखना, 5 not in this, तो इसमें नहीं है, yes it is true। यहां पर लिखा था 5 in this,
तो ये फॉल्स हो गया था बिकॉज इसमें नहीं है, बट यहाँ तो पहले नॉट इन लिखा है, तो नॉट इन इज द कन्वर्स ऑफ इन, नॉट इन इज द रेसिप्रोक, और वी कैन से नॉट इन इज द negation of in value. In is checking for true and false, not in is also checking for true and false, लेकिन उसको वो negate कर देगा. Okay, so this is all done. The same way you can check it for string also. देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, a in the bracket we have written something trade. क्या a trade में है? Yes, this is here, तो it will give you true result. तो यहां पर क्या चेक कर रहा है, ASH, is it there in this? Yes, it is also true. So in this way you can search a name in a paragraph or a line or a sentence. Suppose name is a one word or two word string, and line or paragraph is a long string. So if you will search that name in line, तो अगर वो उस लाइन में वो नेम अवेलेबल होगा तो इट विल गिव यू ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव यू फॉल्स. तो यहां पर देखो, इफ स्ट्रिंग इन लाइन, तो लाइन एक पूरा सेंटेंस है, देखो ऊपर स्ट्रिंग एक वर्ड है, तो इफ लाइन इन, इफ स्ट्रिंग इन लाइन, देन प्रिंट स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट लाइन, अदरवाइज प्रिंट इट इज नॉट कंटेन्ड इन द लाइन. तो बड़े क्लियरली दिया है. अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने एक रेंज फंक्शन कर लिया और एक इन या नॉट इन क्लॉज कर लिया. वी विल यूज दीज इन फॉर लूप. वाइल लूप में तो हम कंडीशनल ऑपरेटर्स लगा देंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन हम फॉर लूप में रेंज लगाएंगे या इन लगाएंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट वी विल डू. तो वी आर स्टार्टिंग 9.7. दिस इज आइट्रेशन लूपिंग स्टेटमेंट. ठीक है, द आइट्रेशन स्टेटमेंट और द रिपीटेशन स्टेटमेंट अलाउज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली. मतलब एक ही काम को बार बार अगर करना है, हमने रिपीटेडली करना है, until a certain condition is fulfilled. जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, या कोई लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, या एक काउंटर कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है ना, तब तक हमें एक ही प्रोसेस को करते रहना है. ठीक है ना. दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट. ठीक है, पाइथन में हम इसको लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं. इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज कॉल्ड लूप, काउंटिंग लूप एंड कंडीशनल लूप. मैंने आपको बताया कि पाइथन में दो तरह के लूप हैं, एक काउंटिंग लूप है, दूसरा कंडीशनल लूप है. कंडीशनल लूप में हम कंडीशन देंगे, काउंटिंग लूप में हम एक काउंटर लगाएंगे जो एक लिस्ट में काउंट करेगा. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. फॉर लूप. फॉर लूप इज अ काउंटिंग लूप. तो here is the format of for loop. For, then a variable name, then in, then a sequence. Sequence is a list of numbers, list of characters, strings. ठीक है, and repeated statement. यहाँ पर repeated statement. तो ये वाले प्रोसेस को ये बार बार करेगा. कब तक करेगा? जब तक ये सीक्वेंस खत्म नहीं हो जाती. फॉर एग्जाम्पल, 4a in 147. तो अब लूप कितनी बार चलेगा? देखो 3 टाइम्स लूप चलेगा. पहले a की वैल्यू क्या होगी? 1. इट विल एग्जीक्यूट दिस. फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. अगेन इट विल एग्जीक्यूट दिस. देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बिकम 7. देन अगेन इट विल एग्जीक्यूट दीज लाइन्स. सो दीज लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स. एवरी टाइम वैल्यू ऑफ a इज डिफरेंट. फर्स्ट टाइम इट विल प्रिंट 1. Then it will print a square also, that is 1. Next time it will print, so let me write it in the state column, 1 1. Then it will become 4, so 4 16. Third time it will print 7 7 and 49. In this way it will print the value. Okay, so it should have given output also. चलो output नहीं दिया, मैंने आपको बता दिया, तुम रन करके देख लो, ये आउटपुट आएगा. For loop in Python is proceeded as following. तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस कैसे करता है ये समझना. द लूप वेरिएबल इज असाइंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस. मैंने आपको अभी बताया ना कि लूप वेरिएबल ए, ये जो ए है ना, दिस इज कॉल्ड लूप वेरिएबल.
A will be first value, then second value, then third value. तो here I am showing you one by one all three values will be given. तो इसको कहते हैं हम loop variable. All the statements in the body of the for loop are executed within that. तो हम जब जब A की वैल्यू बढ़ेगी, जब A की वैल्यू 1 थी तभी पूरा बॉडी पार्ट ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा. जब ए की वैल्यू नेक्स्ट आ जाएगी फॉर, फिर दोबारा से पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो अगेन एंड अगेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द वैल्यू, द बॉडी पार्ट ऑफ द लूप विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए. वन स्टेप 2 इज ओवर, द लूप वेरिएबल इज असाइंड द नेक्स्ट वैल्यू. तो फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा से वही बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा. दिस कंटेन्स अंटिल ऑल द वैल्यूज इन द सीक्वेंस. तो एक एक करके सभी वैल्यूज कंप्लीटली असाइन होंगी एक एक करके. ठीक है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट होगा, ये आपको मैंने बता दिया. ओके, अब इसको ये आउटपुट दे रखा है जो मैंने आपको पूरा आउटपुट दिखा दिया था ना. दिस इज गिवन हियर. लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्टेप. सी हियर, फॉर वी इन 1 2 3. तो क्या होगा, दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स. ठीक है, 3 टाइम्स में v की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ v इज 1. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 प्रिंट क्या होगा, 1. द नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ v विल बी 2. 2 इंटू 2 इंटू 2 8 विल बी द आउटपुट. नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ v विल बी 3. 3 इंटू 3 इंटू 3 विल बी 27. तो ये इसका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होना चाहिए, 81 क्यों दिया. v इंटू वी इंटू वी, 3 इंटू 3 इंटू 3. चलो ये रिजल्ट रन करके देखेंगे कि क्यों ऐसा दे रहा है. ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इट शुड बी 27. ओके, एग्जीक्यूट करके देखेंगे, चेक करेंगे. नाउ नेक्स्ट, फॉर वेल इन रेंज 3 to 18, प्रिंट वेल. तो क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग कहां से होगा, 3 से, और जाएगा कहां तक, 18. 18 से एक कम जाना चाहिए ना, मैंने कहा कि ये एक्सक्लूडेड है. तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 तक ये रिजल्ट आ जाएगा इसका. ठीक है, वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे. आगे देखो क्या प्रोग्राम करें हम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. 9.1, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर. तो ये आपके एग्जाम में भी आया था, यूटी में. नंबर इज इक्वल टू 5 फॉर ए इन रेंज 1 to 11. मतलब ये 10 तक चलेगा. 1 to 11 मीन्स 11 इज एक्सक्लूडेड, तो इट विल वर्क फ्रॉम 1 to 10. प्रिंट नंबर दैट इज 5 into sign, then a is 1, then 2, then 3, then 4 is equal to sign, and then 5 into 1. So ये आउटपुट आ जाएगा, 5 into 1 is equal to 5. Again it will loop, this loop will work again. Then a will become 2. So 5 into 2 is equal to 10. So 5 into 2 is equal to 10. Again this loop will work second time. Now a is 3, then a is 4, then a is 5. In this way it will print this table. टेबल आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का. ठीक है, हम ये वाला 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट. नेक्स्ट प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज अगेन इंपॉर्टेंट. प्रोग्राम नंबर 12, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 7. 1 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर हमने प्रिंट करने हैं. देखो, प्रिंट द सम ऑफ प्रोग्रेसिवली आफ्टर एडिंग ईच नेचुरल नंबर. और हमने सम भी प्रिंट करना है. ठीक है ना. देखो, sum is equal to 0 initially. For n in range 1 to 8, so 8 is excluded, it will work from 1 to 7. Sum is equal to sum plus n. It means sum is equal to sum plus n. N is initially 1. Sum is initially 0. So 0 plus 1, 1. Print. Sum of natural number 1 is 1. ये देखो, ये 1 is 1. ये आउटपुट आ गया. Next time again it will execute. Now n will become 2.
सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 मीन्स 1 + 2 3 हो जाएगा, तो इट विल प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर इज 3, ये 3 आ गया। देन नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम सम, तो हो गया हमारा 3 और नेचुरल नंबर हो गया 2 था ना, 3 + 3 6, ये 6 आउटपुट आ गया। then this 1 by 1 it will work up to 7, so this is sum of first 7 natural numbers। ओके, देखते हैं आगे प्रोग्राम 9.13, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 7। ठीक है, ये कर लिया, वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रोग्राम। देन while loop, so for loop is clear to you, now let's start while loop। while loop need a condition, while, then condition, then colon, then body part of the loop। it will execute this body part of the loop how many times, जब तक condition true है, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इन केस ऑफ फॉल्स इट विल गो आउट ऑफ द लूप। आफ्टर द लूप अगर कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी, फॉल्स हैं तो आउट ऑफ द लूप, ट्रू है तो इनसाइड द लूप। ठीक है, एंड वंस इट इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड द लूप, ये फिर रिपीट, अगेन इट विल चेक द कंडीशन, अगेन इट विल एग्जीक्यूट दिस, अगेन इट विल चेक द कंडीशन। सो कंडीशन विल बी चेक्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन। तो ये जो बॉडी पार्ट है तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स होते ही इट विल कम आउट ऑफ द लूप। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। सी a इज इक्वल टू 5 while a is greater than 0 print hello a and a is equal to a minus 3। तो a 5 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 5 is greater than 0, yes 5 is greater than 0, hello 5, आउटपुट ये रहा सी hello 5। then a will become 5 minus 3 2, 2 is greater than 0, yes 2 is again greater than 0, तो it will check this condition again, print hello 2, ये आ गया hello 2। then hello will become 2 minus 3 minus 1, while again it will check the condition, while minus 1 is greater than 0, no condition is false, so it will come out, print loop over, ये loop over आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को समझना कि हाउ दिस लूप इज वर्किंग। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें कि लूप चल कैसे रहा है। बेसिकली ये बिल्कुल क्लियर स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1, it will check the condition. If the condition is true, it will execute the body part of the program. If the condition is false, it will exit the body part of the function of the loop. If it is true, तो फिर ये body part execute करने के बाद फिर दोबारा से condition check होगा, मतलब step number 1 पे फिर जाएगा, again it will check the condition। तो हमारा exit कहाँ से हो रहा है? exit तब हो रहा है जब हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो आउट ऑफ द लूप हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल यहां दे रखे हैं, देखो सी व्हाइल कंडीशन टेस्टिंग, दिस इज द टेस्ट ऑफ द कंडीशन, देन इफ इट इज ट्रू इट विल प्रिंट हेलो, अगेन इट विल टेस्ट द कंडीशन, अगेन इट इज ट्रू इट विल प्रिंट हेलो 2, थर्ड टाइम इट विल अगेन टेस्ट द कंडीशन, बट दिस टाइम कंडीशन इज फॉल्स, इट इज गोइंग आउट ऑफ द लूप। Loop body part is not executing, it is going out of the loop. So in this way, simple, let me write it for you. While condition, if this condition is true, it will execute this part. I'm saying this is true part. If this condition is true, it will execute this part, and again it will check the condition. अगेन इट इज ट्रू, फिर दोबारा यही पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ये। तो ये वाला पार्ट तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन इट विल चेक द कंडीशन अगेन, बट इफ दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स देन इट विल गो आउट ऑफ द लूप। तो फिर ये बाहर वाली स्टेटमेंट अगर कोई है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, now it is important to understand that any while loop contain these 4 things: initialization,
test condition, body of the loop, and then updation the expression. मैंने अभी भी आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा कि there is a while loop, here we have a condition, here we have a, what happened to the pen, just a minute. Now pen is working. While condition need a variable, okay, say a is less than 10 colon, it means while a is there, but what is the value of a at the time of checking the condition? So here we have to give a is equal to 1. Then I'm saying print a, and after that I'm writing a is equal to a plus 1, and then again going back to the condition. तो पहले मैंने a की वैल्यू कहीं से स्टार्ट की, 1 से स्टार्ट की, तो दिस इज कोल्ड इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग ऑफ द काउंटर. देन टेस्ट कंडीशन, तो ये एक्सप्रेशन को मैंने टेस्ट किया, इफ इट इज 2 इट विल एग्जीक्यूट इट and it will change the value of a. A will become 2 now. Again it will test the condition, फिर दोबारा से true हो गई. तो ये false कब होगी? जब a की वैल्यू 10 हो जाएगी, 1 by 1 it is increasing, 1 then 2 then 3 then 4 then 5. It will go out of the loop when a will become 10. Now what are the important parts? Starting is called initialization, test expression is this condition, then body part, what you want to execute again and again, this is body part, and update the expression means a is equal to a plus 1. ये हम अपडेट कर रहे हैं. अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, और अगर इनफाइनाइट लूप बन गया तो ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, एंड द प्रोग्राम विल नेवर एंड, इट विल हैंग योर सिस्टम. ओके, other important things that you need to know related to while loop are, ये दो important चीजें और दी हैं इसमें. In a while loop, a loop control variable should be initialized before, means while से पहले, while condition से पहले a is equal to कोई भी initial value 0 या 1 होनी चाहिए. If a is not initialized, you cannot use a in this statement. Okay, first declare then use. You cannot use before declaration. Okay, and the second thing is the loop variable must be updated inside the body part. अगर हमने a is equal to a plus 1 नहीं कहा, मैंने क्या कहा आपको कि ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो इन्फाइनाइट लूप बन जाएगा. दिस टेस्ट कंडीशन विल बिकम ऑलवेज ट्रू, और ऑलवेज ट्रू का मतलब इसको इन्फाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करने लगेगा, तो क्या होगा, सिस्टम हैंग अप हो जाएगा. ठीक है, इस वाइल लूप को देख लेते हैं क्या कह रहा है. a is equal to 5 initialization, while a is greater than 0 condition, then print a, then a is equal to a minus 1 decrement, so it will print first 5, then it will decrease the value, next it will print 4, then 3 2 1 0. It will not print because at 0 this condition will become false and it will go out of the loop. Thank you, it will print at last, it will print thank you. See, one more program is there. This program is 9.14, program to calculate factorial. Now what is the value of factorial? Say factorial of 5 is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, or you can say 1 into 2 into 3 into 4 into 5, both are same thing. So how to calculate factorial with the help of loop? Say number is equal to enter a number, एक नंबर इनपुट करवा लिया हमने. फैक्टोरियल इज इनिशियलाइज्ड एज 1, फैक्ट इज इक्वल टू 1, a is equal to 1. So we have taken 3 variables num, fact and a. While a is less than num, तो a की वैल्यू क्या है 1, num की वैल्यू क्या है जो आपने इनपुट करवाई है. मैंने इनपुट करवाया 5, तो 5 का रिजल्ट आएगा. फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू a, तो a is 1, 1 into 1 will be 1. Next a will become 2 now.
A will become 2, then again it will execute the loop. Now this time A is 2 because A का increment हो गया. 1 into 2 will become 2. Next again it will become 3. Now again execute it. Now A is 3. 2 into 3. It is storing in fact. फैक्ट में स्टोर होता जा रहा है, ठीक है ना. थर्ड टाइम फैक्ट की वैल्यू 6 हो जाएगी. 6 into 4, ठीक है. नेक्स्ट टाइम फैक्ट की वैल्यू 24 हो जाएगी. 24 into 5, फिर रिजल्ट आ जाएगा 120. अगर आपने नम में 5 डाला तो फैक्ट में 120 सेव हो जाएगा. वंस द लूप इज ओवर, तो ओवर होने के बाद प्रोग्राम यहां आ जाएगा. तो प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज फैक्ट. दिस इज द आंसर. ओके, तो यहाँ 3 डाला तो 6 आ गया. 5 डाला तो 4 डाला तो 24 आ गया. 5 डालते हैं तो 120 आ जाता. ठीक है, ये एक प्रोग्राम और आ रहा है इसमें. प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एंड प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो n नेचुरल नंबर में इवन का सम और ऑड का सम हमें दो अलग अलग वेरिएबल में कैलकुलेट करना है और प्रिंट करना है. ठीक है, n इज इक्वल टू इंट इनपुट अप टू विच नेचुरल नंबर. तो हमने n में हमने कोई नेचुरल नंबर डाल दिया, से मैंने 10 डाल दिया. तो अब मुझे क्या करना है, 1 3 5 7 9 इनका आंसर अलग वेरिएबल में सेव करना है. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इनका आंसर अलग वेरिएबल में सेव करना है. इन दोनों का सम को फिर मुझे प्रिंट करना है. दिस इज सम ऑफ ऑड नंबर्स, दिस इज सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. ओके, तो देखो क्या है, counter is equal to 1, sum even and sum odd, two variables are initialized at 0. ठीक है, while counter is less than equal to n. देखो equal to लगाया तो ये 10 तक चलेगा पूरा. ठीक है, now if counter percent sign is to check it is divisible by 2 or not, इसको मोड भी बोलते हैं. ठीक है ना, काउंटर को हमने 2 से चेक किया, क्या रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आया तो ये इवन नंबर है. ठीक है ना, इवन में काउंटर कर दिया, सम में काउंटर ऐड कर दिया. एल्स ऑड में हमने काउंटर ऐड कर दिया. तो एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, या वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा. तो बाय द एंड इट विल कंप्लीट द लूप एंड प्रिंट द स्टेटमेंट द सम ऑफ इवन नंबर इज दिस एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स इज दिस. तो ये इसने क्या किया, फर्स्ट 25 का कैलकुलेट किया, 25 नेचुरल नंबर्स. तो इवन नंबर्स का सम ये हो गया और ऑड नंबर्स का सम ये हो गया. ओके, लूप एल्स स्टेटमेंट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, जैसे इफ में भी एल्स स्टेटमेंट थी हमारे पास, इफ दिस एंड देन एल्स देन दिस. लूप में भी एल्स स्टेटमेंट है. ये लूप की एल्स स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है. फॉर या वाइल हमने कुछ कंडीशन दी, अगर ये फॉल्स हो गई तो एल्स एग्जीक्यूट होगा. बट ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉडी पार्ट ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन, बट एल्स विल एग्जीक्यूट ओनली वंस व्हेन दिस इज फॉल्स. ओनली वन टाइम, फॉल्स के टाइम. और बहुत बारी सिचुएशन ऐसी होती है कि ट्रू होते होते यहाँ बीच में से हम स्किप करके बाहर चले जाते हैं, ब्रेक करके लूप को बाहर चले जाते हैं, तो एल्स एग्जीक्यूट भी नहीं होता कई बार. तो ठीक है, तो एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, लूप की कंडीशन फॉल्स होगी. और जब ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, देखते हैं हम. व्हाट इज रिटन हियर, बोथ लूप ऑफ पाइथन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप हैव एन एल्स स्टेटमेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम एल्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. तो मैंने आपको बताया इफ एल्स का एल्स अलग है, लूप का एग्जीक्यूशन सिर्फ एक बार होता है जब उस लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है. ठीक है ना, द एल्स ऑफ द लूप एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द लूप एंड्स नॉर्मली. नॉर्मली मतलब जंप नहीं कर सकते. देयर आर 2 जंप स्टेटमेंट्स, वो आगे हम करेंगे. देखो ये आगे ब्रेक स्टेटमेंट आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड जंप स्टेटमेंट. तो अगर वो जंप हो गया, व्हाट शुड आई से, जंप, अगर वो JUMP जंप स्टेटमेंट से अगर हम लूप से बाहर आए तो फिर एल्स कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. लेकिन वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन से बाहर आए, कंडीशन फॉल्स करके बाहर आए, देन इट विल एग्जीक्यूट द एल्स स्टेटमेंट.
ओके चलो ये एग्जाम्पल से करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ब्रेक स्टेटमेंट को करेंगे और जंप स्टेटमेंट जितने भी हैं हमारे पास वो करेंगे। तो हियर अप टू नाउ वी हैव डन फॉर लूप, व्हाइल लूप, रेंज फंक्शंस, ठीक है। इफ एल्स हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेनी प्रोग्राम्स आर गिवन, आप करो। थैंक यू।